ساری فیملی ہماری چرچ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں۔ آپ کو کاہن بننے کے لیے گھر سے کسی نے فورس کیا؟ یہ میری ایک آزادانہ چوائس اور میں سمجھتا ہوں بلاہٹ ہے۔ جب تک خدا کسی کو بلاتا نہیں تو یہ بلاہٹ آگے بڑھتی نہیں۔ تو فادر جی، آپ نے کیپٹن جماعت یعنی مقدس فرانسس آف اسیسی کی جماعت کو ہی کیوں چنا؟ ایک کاہن جو بیلجیم مشنری تھے اور وہ گزشتہ 32 سال سے انہوں نے وہاں پر اپنی خدمات سر انجام دی۔ کاہن بنے، آرڈینیشن ہوئی، تو آپ اکیلے تھے یا کوئی اور بھی ساتھ؟ میں نے کہانت کا سیکرامنٹ 6 جنوری 2001 کو حاصل کیا تھا لاہور سیکرٹ ہارٹ کیتھیڈرل میں، اور مجھے آرڈین کیا تھا ہز ایکسیلنسی بشپ اینڈریو فرانسس نے۔ پیرش میں کام کرتے ہوئے آپ کی ترجیحات کیا ہوتی ہیں؟ 3 پیرشز میں اب تک کام کیا ہے۔ سب سے پہلے میں نے سینٹ میریز پیرش گلبرگ میں کام کیا۔ شالوم ایوری ون، آج ہم آپ کو فرانسسکن میڈیا اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے اس میڈیا چینل کا آغاز ہوا چاہتا ہے، اور اس سے زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ آج ہم ایک بڑے ہی خوبصورت گیسٹ کے ساتھ اس ٹاک کا آغاز کر رہے ہیں، اس پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں۔ آج ہم جن سے آپ کو ملوانے والے ہیں وہ ایک بہت ہی خوبصورت شخصیت کے مالک ہیں۔ آپ ایک استاد ہیں، بہت اچھے کاہن ہیں، اور بہت ہی ملنسار انسان ہیں۔ میری مراد آج کے گیسٹ ریورنڈ فادر پیٹرک سیموئل OFM کیمپ سے ہے۔ فاجی، ہم آپ کو فرانسسکن میڈیا میں خوش آمدید کہتے ہیں اپنے اسٹوڈیو میں، اور بہت خوش ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ تھینک یو ویری مچ سر شہزاد، آپ نے آج میرے لیے بطور کاہن یہ وقت نکالا تاکہ آج ہم گفتگو کر سکیں اور کچھ خوبصورت یادوں کا ذکر تذکرہ کر سکیں، گزشتہ خوبصورت کہانت کی 25 سالہ یادوں کے حوالے سے۔ اور جی، سب سے پہلے ہم آپ کو اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید پہ کہتے ہیں، اور آپ کو آپ کی کہانت کے 25 سالوں کی اس جوبلی میں، اس ایمان کے سفر میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ سر۔ آپ کا یہ 25 سالوں کا سفر یقیناً آپ کے والدین کی، بہن بھائیوں کی اور آپ کی محنت کا نتیجہ ہے۔ خداوند کی بہت بڑی برکت ہے کہ خدا نے آپ کو یہ 25 سالوں کا تحفہ دیا، بہت اچھی صحت سے نوازا، اچھے علم و دانش سے نوازا۔ اس کے لیے ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ ڈیفینیٹلی اس سارے کہانت کے سفر میں خدا باپ کا بہت عظیم ہاتھ رہا۔ خدا ہر لمحہ، ہر قدم پر میری حفاظت کرتے رہے، مجھے ہر قسم کی مشکلات سے پروٹیکٹ رکھا، میری کیئر کی، تاکہ میں اس سفر کی تربیت میں بھی آگے بڑھتا رہوں، اور جب کاہن بنا تو کاہن بن کر بھی اس کہانت کی خدمت میں مضبوط رہ سکوں، ثابت قدم رہ سکوں اور خوش رہ سکوں۔ ونڈرفل۔ بس تھوڑا سا بلکہ بہت زیادہ پیچھے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ کی تھوڑی سی پرسنل لائف کو ڈسکس کرتے ہیں۔ آج اپنے دیکھنے والوں کو یہ بتاتے ہیں کہ فادر پیٹرک کون تھے، ان کے زندگی کے بارے میں، پرسنل زندگی کے بارے میں ہم تھوڑا سا جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، یہ بتائیں کہ آپ کہاں پیدا ہوئے اور آپ کا خاندان کیا تھا، مطلب اپنی فیملی کے بارے میں تھوڑا سا پلیز بتائیے گا۔ سر شہزاد، میں حافظ آباد میں پیدا ہوا۔ حافظ آباد ایک خوبصورت ٹاؤن ہے، ابھی ایک اچھا شہر بن چکا ہے، اور وہاں پر میری پیدائش ہوئی، اور میں نے اپنی بچپن کی یادیں حافظ آباد میں ایک کمپاؤنڈ میں، جہاں پر ایک مشنری کاہن تھے جن کا نام ریورنڈ فادر اسٹینسلاس تھا، میں ان کے زیر سایہ میں نے اپنی ابتدائی ایام گزارے، ان کی محبت میں، ان کی قیادت میں، ان کی تربیت میں۔ چونکہ میں ان کے ساتھ رہا، اس لیے میرے اندر
ایک مشنری پیشن ہے، کیونکہ وہ خود بہت بڑے مشنری تھے، اور میرے اندر بطور کاہن ایک مشنری پیشن ہے. میں اپنی چیزوں کو، اپنی خدمات کو، اپنی منسٹریز کو میں ایک مشنری نقطہ نگاہ سے دیکھتا ہوں، کرتا ہوں اور نبھاتا ہوں. فاجی اپنے بچپن کے بارے میں بتائیں، بچپن کیسا گزرا؟ کیا آپ بہت زیادہ شرارتی تھے، شرمیلے تھے، یا ہمارے دیکھنے والوں کو اپنی بچپن کی کوئی یادیں شیئر کریں کہ اپنے خاندان میں آپ کس کے زیادہ قریب تھے اپنے اس بچپن میں؟ اوکے سر، اس سے پہلے میں بچپن کی بات کروں، میں اپنے والدین کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ میری اس کہانت میں میرے پیرنٹس کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. یہ بلاہٹ کا تحفہ جو مجھے ملا ہے، یہ سرٹنلی یہ میرے والدین کی تربیت کی وجہ سے ہے اور ان کی خدمات کی وجہ سے ہے، کیونکہ انہوں نے ہمارے کمپاؤنڈ میں جہاں پر میں رہتا تھا ایک کاہن کی چرچ کی بے انتہا خدمت کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں ان کی خدمت کی بدولت خدا نے مجھے بھی چنا اور برکت دی. میرے والد کا نام سیموئل سردار تھا، میری ماما کا نام جو بھی حیات ہیں ان کا نام ہے ارشاد بی بی، اور دونوں بہت خوبصورت عاجز حلیم والدین ہیں میرے، جنہوں نے میرے اندر بہت ساری ایمانی، روحانی اور انسانی اقدار کو بلوغت دینے میں، ان کو اور خوبصورت بنانے میں اہم رول ادا کیا ہے. ہم بہت بڑی فیملیز ہیں، اور ہم 7 بردرز اور 4 سسٹرز ہیں، اور میرے والدین بگ فیملی، اور یہ ساری فیملی ہماری چرچ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. ہمارا پورا خاندان چرچ کے مختلف سرگرمیوں میں حصہ لیتا ہے، کوائرز میں، چرچ کی دیکھ بھال میں، چرچ کی صفائی ستھرائی میں، اور دیگر بہت سارے ایسے معاملات ہیں جہاں پر ہمارا خاندان، میرے بہن بھائی وہ چرچ میں اپنا اہم رول ادا کرتے ہیں. میں جب بچہ تھا تو میں نے چرچ میں التار کی بہت خدمت کی ہے. ہمارے چرچ کا نام ہے سینٹ فرانسس آف اسیسی چرچ، حفظ آباد، اور اس التار کی میں نے بہت خدمت کی ہے، اور ایسے آلٹر بوائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ التار کی لگاتار اور ذمہ داری کے ساتھ خدمت کرنے کی وجہ سے خدا نے مجھے اسی التار سے اس خدمت کے لیے، کہانت خدمت کے لیے بلایا، چنا اور مسا کیا. ہاں، آپ کا جب کویسچن ہے کہ میرا بچپن کی یادیں، بچپن کیسا گزرا، بچپن میرا بہت خوبصورت گزرا، اور میں شروع ہی سے ایک سائلنٹ کیریکٹر شخص رہا، خاموش طبع اور ریفلیکٹیو، گھر میں بھی، اسکول میں بھی، ایون ہاسٹل میں بھی. تو آئی تھنک خدا نے مجھے ریفلیکشن میں زندگی گزارنے کی خاص تربیت عطا کی ہے، برکت عطا کی ہے. I have not have been very naughty boy, okay, but I was very kind, cool, or simple, a humble boy from the beginning. فاجی جیسے آپ نے بتایا کہ پورا خاندان خدمت میں، والدین بھی خدمت میں تھے، تو خدمت تو آپ کے بلڈ میں فاجی ہے. فاجی آپ کو کاہن بننے کے لیے گھر سے کسی نے فورس کیا یا اپنی مرضی کے ساتھ آپ نے اپنے آپ کو پیش کیا؟ نو، ایسا نہیں ہے. یہ میری ایک آزادانہ چوائس اور میں سمجھتا ہوں بلاہٹ ہے. جب تک خدا کسی کو بلاتا نہیں تو یہ بلاہٹ آگے بڑھتی نہیں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چنا ہے. خدا چنتا ہے، خدا بلاتا ہے، خدا مسا کرتا ہے. اور یہ اگر میں کہوں کہ میں کسی کے کہنے پر اس لائف میں آیا ہوں، ناٹ ایٹ آل. یہ خدا نے چنا ہے، میری اپنی ذاتی چوائس اور فری چوائس، آزادانہ ایک چناؤ زندگی کا جو میں نے اس زندگی میں لیا ہے. اور سرٹنلی اس کے پیچھے خدا کی بلاہٹ موجود ہے. اسی لیے میں اس لائف میں بہت فروٹفل ہوں، میں اس لائف میں خوش ہوں کیونکہ خدا میرے ساتھ ہے. جی، آپ کی ارلی ایجوکیشن کہاں پہ ہوئی؟ آپ کہاں سے آپ نے تعلیم حاصل کی؟ آپ کا اپنا ذرا اسکول کا کچھ بتائیں کہ آپ کس اسکول میں پڑھتے رہے. جی اوکے، ارلی ایجوکیشن میں نے سینٹ میریز ہائی اسکول حافظ آباد میں حاصل کی، اور جہاں پر میں نے بہت خوبصورت اپنے ارلی
स्कूल के अयाम गुजारे, वहाँ पर भी मैं क्वाइट साइलेंट शख्स था, पढ़ाई पर फोकस देना, अपने काम को फोकस देना। और बहुत सारी जो सिस्टर्स ऑफ चैरिटी जमायत है जो वहाँ पर, उनका रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरी ज़िंदगी में। और आई थिंक कि उनकी हदायत से, उनकी सोबत में रहने से मेरी बुलाहट को और तक़वियत मिली है। ये सेंट मेरी स्कूल, इसको रन करती हैं सिस्टर्स ऑफ चैरिटी ऑफ जीसस एंड मैरी, ओके, SCGM। और इनका इम्पॉर्टेंट रोल मेरी बुलाहट में, मेरी तरबियत में बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये खूबसूरत स्कूल के अयाम बहुत अच्छे थे, बहुत सीखने वाले थे, और साथ ही साथ अपने ईमान में ग्रो होने वाले थे। और फाजी ये बताइएगा कि आपने अपनी बुलाहट कब महसूस की कि आपको लगा कि आपको खुदा बुला रहा है, आपको काहिन बनना चाहिए, कब आपने अपने दिल में ये महसूस किया? आई थिंक ये सर्टनली चाइल्डहुड से ही एक आवाज़ हमेशा मैं सुनता रहा कि खुदा कहीं ना कहीं मुझे ज़रूर बुलाता है, और खुदा मुझे अपनी चर्च की खिदमत के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। देयर इज़ ऑलवेज अ विस्परिंग, ओके, अ डिवाइन विस्परिंग मेरे दिल में, मेरे ज़हन में और मेरे ईमान में, जो कि मुझे हमेशा अपनी तरफ खींचती रही, माइल करती रही। और इसलिए मैं समझता हूँ कि बीज जो बुलाहट का, ये चाइल्डहुड में ही, बचपन में ही खुदा ने मुझे अता कर दिया था। फिर इसके बाद जो स्कूल की तरबियत और असातिज़ा के साथ, काहिन के साथ, सिस्टर साहबात के साथ, ये सारा इंटरेक्शन जो था, इन्होंने मेरे इस बीज को और परवान चढ़ाया। लेकिन ये बीज बचपन में ही, जब मैं अल्तार की खिदमत करता था, ये उस वक्त खुदा ने मेरी लाइफ में बो दिया था। तो फादर जी, ख़ानदान में सबसे पहले किससे शेयरिंग ये की? किसी बहन भाई से की, पेरेंट्स के साथ की, किन से शेयरिंग की कि मैं काहिन बनना चाहता हूँ, और फिर उनका रिस्पॉन्स क्या था? या मैंने अपनी मामा पापा को कहा कि मैं समझता हूँ कि मुझे सेमिनरी जाना चाहिए, खुदा मुझे बुलाता है। और उन्होंने बहुत इनकरेज किया। उन्होंने कहा ओके गो हैड, अगर आप समझते हो कि आपकी बुलाहट है, खुदा आपको चुनना चाहता है, खुदा आपको अपनी चर्च के लिए, इस दुनिया में अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, तो हम आपकी सपोर्ट करते हैं, यू गो हैड, और आप जाएं, अपने आप को इस लाइफ में और इन्वॉल्व करें, सीखें और एक अच्छे काहिन बने। तो फादर जी, आपने कैप्चन जमात यानी मुक़द्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी की जमात को भी क्यों चुना? ओके, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे चर्च का नाम सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी चर्च है, और वहाँ पर एक काहिन जो बेल्जियम मिशनरी थे, और वो गुज़श्ता 32 साल से उन्होंने वहाँ पर अपनी खिदमत सर अंजाम दी, और उनका इंटरेक्शन मेरी फैमिली के साथ, मेरी अपनी ज़ात के साथ बहुत गहरा था। और उनका नाम था रेवरेंड फादर स्टैनिस्लास। वो एक कैपुचिन काहिन थे, और मुक़द्दस फ्रांसिस की तर्ज़ ज़िंदगी को अपनाने वाले एक बहुत अच्छे दरवेश थे। मैंने अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे बचपन के अयाम उनके साथ गुजारे, सफ़र किया बहुत ज़्यादा उनके साथ इलाक़ों में। जब भी वो इलाके में जाते, हमेशा मैं उनकी अकॉम्पनीमेंट करता था। इबादत में मैंने एज ए ऑल्टर बॉय उनके साथ बहुत सारी खिदमत को निभाया है, और आई थिंक एंड आई बिलीव कि इसी वजह से खुदा ने मुझे फ्रांसिस्कन बुलाहट अता की है, और मैंने सेंट फ्रांसिस की इस जमायत का इंतखाब किया, मैंने कैपुचिन इस जमायत का इंतखाब किया, ताकि मैं एक ऐसा काहिन बनूं जो कि मुक़द्दस फ्रांसिस की सफ़ात पर अमल करते हुए यीशु का अच्छा पैरोकार और शागिर्द बन सकूं। जी, ये बताइएगा कि सेमिनरी के इब्तदाई दिन कैसे थे? क्योंकि आम ज़िंदगी में डिसिप्लिन फ़र्क होता है लाइफ का, और सेमिनरी का डिसिप्लिन ज़रा फ़र्क होता है कि आपने बड़ा टाइमली उठना बैठना, हर चीज़ ये कि बड़े डिसिप्लिन के साथ करनी होती है। तो वो इब्तदाई दिन कैसे गुजरे? सेमिनरी के इब्तदाई दिन बहुत ही एडवेंचरस थे, नंबर 1, और टोटल लाइफ सेटअप जो है ना वो चेंज है, घर का और सेमिनरी का
टोटल। हाँ जी। घर में हम आज़ाद होते हैं, जब दिल करे हम जो भी करना चाहे हम घर में कर सकते हैं, खा सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं, एवरीथिंग। लेकिन सेमिनरी का एक डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन ही इंसान को और उसमें एक अच्छी तरबियत को लेके आता है। और मैंने अपने आप को डिसिप्लिन में इन्वॉल्व करने के लिए इतना टाइम नहीं लिया था। मैं बहुत जल्दी मैंने अपने आप को इस सेमिनरी के डिसिप्लिन में डाल दिया और मैं फिर उसके साथ ग्रो होता रहा। और मैं समझता हूँ कि वो काहिन या वो ब्रदर जो अपनी अर्ली इनिशियल डेज में सेमिनरी के डिसिप्लिन को समझ आता है, वो एक अच्छा और मुनज़्ज़म और ऑर्गेनाइज्ड और एक अच्छा काहिन बन सकता है। अपनी अर्ली डेज में सेमिनरी के डिसिप्लिन को समझना, तो आई थिंक इतना टाइम नहीं लगा था मुझे। थोड़ा हार्ड था, डिफ़िकल्ट था कि एक आम जिंदगी से निकल के, आम घर से निकल के एक सेमिनरी के सेटअप में आना, जहाँ पे हर चीज़ अपने प्रॉपर टाइम पे होती है। सुबह उठना, 5:30 उठना, शाम तक 10 बजे तक, हर टाइम एक डिसिप्लिन में होता है। एंड दैट वाज अ ब्यूटीफुल लाइफ। तो फाजी उस वक्त कहीं लगा नहीं कि मैं किधर आ गया हूँ, मैं घर में तो बहुत आज़ाद था और यहाँ पे आके मतलब सोना भी फादर्स की मर्ज़ी से, उठना भी उनकी मर्ज़ी से, खाना पीना भी सभी उनकी मर्ज़ी से है, तो ये एक डिफरेंट लाइफ थी आपके लिए। तो फाजी ये बताइएगा कि सेमिनरी के असातिज़ा में आपकी फॉर्मेशन के दिनों में जो असातिज़ा थे उनमें से किन से आप बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए या आज उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? ओके, मैं यकीनन तमाम असातिज़ा का सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ दिल की अथाह गहराइयों से कि मेरी 25 साल की इस कहानत में जो अहम रोल अदा किया है, यकीनन ऑल माई टीचर्स एंड प्रोफेसर्स जिन्होंने मुझे सिखाया ईमान की वैल्यूज़, ईमान की इक़दार के बारे में उन्होंने मुझे बताया, सिखाया कि हकीकी तौर पर ईमान क्या होता है, और अच्छा काहिन बनने में उन्होंने मेरी हदायत की, रहनुमाई की और अकाउंटमेंट की। हर असातिज़ा मेरे लिए एक ट्रेजर रहा। और जब मैंने सेमिनरी को ज्वाइन किया, जब मैं कराची में गया, तो मैंने बहुत बड़े बड़े असातिज़ा को देखा, जिनमें फॉरेनर्स भी थे, उसके बाद डच प्रोफेसर्स, और उसके बाद हमारे बहुत सारे अजीम काहिन मौजूद थे। और हमेशा मेरे दिल में ख्वाहिश रही थी कि आई मीन दे आर सो वंडरफुल प्रोफेसर, मुझे भी इनकी तरह बनना चाहिए। कि शुरू ही से मेरे सेमिनरी के अयाम में, स्पेशली कराची से, प्रोफेसर जब पढ़ाने आते थे वो मेरे लिए एक लाइमलाइट होते थे कि मुझे भी उस जैसा बनना है, मुझे भी ऐसे प्रोफेसर्स की तकलीद करनी है। सो ब्यूटीफुल। तो सर आई टेल यू कि ये बीज जो बोया गया था, ये ख्वाहिश जो मेरी ज़िंदगी में पैदा हुई थी एक अच्छा प्रोफेसर बनने की, और खुदा ने मुझे खुद एक बहुत अच्छा प्रोफेसर बना दिया है। ये सब कुछ मैंने देखा, परखा और दूसरों की ज़िंदगियों से सीखा, और आज मेरी खिदमत ऐसे प्रोफेसर 22 साल की खिदमत है। 25 साल मुझे काहिन बने हुए और इनमें से 22 साल मैंने दर्सो तदरीस में गुजार दिए। और मेरे बहुत सारे जो काहिन अभी बन चुके हैं वो मेरे स्टूडेंट्स हैं। और जब कभी हमारा ऑनगोइंग फॉर्मेशन का सेशन होता है, साल में एक दफ़ा सारे यंग प्रीस्ट आते हैं, और जब मैं उनको देखता हूँ तो उसमें 50-60 काहिन बैठे होते हैं, और सारे काहिन वो तकरीबन मेरे स्टूडेंट होते हैं। और दिल को बड़ी खुशी होती है कि फ्रूट को देखना और खुदा का शुक्र अदा करना इस खिदमत के लिए बतौर प्रोफेसर, बतौर काहिन। आई थिंक इज़ अ वंडरफुल ब्लेसिंग जो खुदा ने मुझे अता की है। फाजी, आपने कहानत का सैक्रामेंट कब हासिल किया, और आपने जब आप काहिन बने, ऑर्डिनेशन हुई, तो आप अकेले थे या कोई और भी साथ थे? ओके, मैंने कहानत का सैक्रामेंट 6 जनवरी 2001 को हासिल किया था लाहौर सेक्रेट हार्ट कैथीड्रल में।
اور مجھے آرڈین کیا تھا ہز ایکسیلنسی بشپ اینڈریو فرانسس نے. اب وہ خدا میں سو چکے ہیں, لیکن انہوں نے مجھے اس خدمت پر فائز کیا, مسا کیا, میرے ہاتھوں کو مسا کیا, اور مجھے جذب ان کی بدولت ملا, اور انہوں نے مجھے یہ نعمت عطا کی. اور آج ہم اس ایکسیلنسی بشپ اینڈریو فرانسس کو میں یاد بھی کرتا ہوں, اور ان کا شکر بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس کہانت کے سیکرامنٹ پر مسا کیا, اور یہ عظیم خدمت کا رتبہ مجھے ان کی بدولت ملا. خدا انہیں ابدی اور ہمیشہ کے آرام میں جگہ عطا کرے. فاجی, آپ آرڈینیشن کے بعد, پریسٹ بننے کے بعد آپ نے کہاں کہاں اپنی خدمات پیش کی ہے؟ 2001 میں جب میری آرڈینیشن ہوئی تو سب سے پہلا مشن جو مجھے عطا کیا گیا میری کیپوچن جماعت کی طرف سے, ٹو بی اے مشنری. سو ان اگست میں اور 7 نووسز ہم نے پاکستان کی سرزمین کو چھوڑا, اور ہم سری لنکا میں تربیت کے لیے اور بطور مشن کے لیے گئے. سو آئی بیکیم دا فرسٹ کیپوچن لوکل مشنری 2001 میں, جو دوسری سرزمین پر سری لنکا میں وہ کلام کو پھیلانے اور انجیل کا پرچار کرنے اور مشن کو امپلیمنٹ کرنے گئے. جب مجھے کہا گیا کہ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بطور وائس ریکٹر جانا ہے, آپ کے 2 مقاصد ہوں گے. سو مائی مشن واز آف 2 فولڈ. سب سے پہلے نووسز کے ساتھ اکمپنیمنٹ کرنا اور ان کی تربیت میں اپنا رول ادا کرنا ایز اے نووس ماسٹر, اسسٹنٹ نووس ماسٹر. سیکنڈ, ٹو امپلانٹ دا کیپوچن آرڈر ان سری لنکا. یہ 2 مشن تھے. تو ان 2 مقاصد کو لے کے میں اور میرے ساتھ 7 نووسز وی لیفٹ دا لینڈ آف پاکستان اینڈ لینڈڈ آن دا لینڈ آف سری لنکا, دا لینڈ آف کوکونٹس. جی, پیرش میں کام کرتے ہوئے آپ کی ترجیحات کیا ہوتی ہیں؟ یہاں سر یہ بہت خوبصورت کویسچن جو آپ نے کیا ہے. پیرش ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کاہن کو جب ملتی ہیں, اور میں نے 3 پیرشز میں اب تک کام کیا ہے. سب سے پہلے میں نے سینٹ میریز پیرش گلبرگ میں کام کیا آلموسٹ اباؤٹ 5.5 years. اس کے بعد میری سیکنڈ اپوائنٹمنٹ میری ہوئی سینٹ جوزف میں بطور علاقہ انچارج, اور میرے پاس سارا ایریا میں ٹاؤن اور دیگر بہت سارے چرچز تھے. اٹس کوائٹ وائڈ ایریا. 11 ماسز ہر سنڈے کو وہاں پہ ہوتی ہیں. سو بگ پارٹ آف دا پیرش. اور میری تھرڈ اپوائنٹمنٹ ابھی میری ہوئی ہے سینٹ کلیئر پیرش ادھر کوٹ لکھپت میں. میں رہتا کوٹ لکھپت میں ہوں, میرا ریزیڈنس کوٹ لکھپت میں ہے, فرائری میں, لیکن جو اپوسٹلیٹ ہے میرا پیرش ہے وہ سینٹ کلیئر پیرش لاہور ہے. وہاں پر میں اپنی خدمت سر انجام دیتا ہوں, اور میری پریورٹیز میں سب سے بڑی پریورٹیز فیتھ فارمیشن. بطور کاہن آئی تھنک میری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ میں اپنے لوگوں کی فیتھ فارمیشن کروں. اس کے بعد میری سیکنڈ امپورٹنٹ پریورٹی رہی ہے یوتھ فارمیشن. یوتھ کو آگاہی بیداری دینا اور یوتھ کے لیے کی بہتری کے لیے اپنی خدادت صلاحیتوں کو استعمال کرنا. آئی تھنک دیٹس مائی سیکنڈ پریورٹی, کیونکہ یوتھ ہمارے قوم کا, ہمارے ملک کا سرمایہ ہے. اچھی یوتھ ہمیں اچھی چرچ عطا کرتی ہے, اچھی یوتھ ہمیں اچھا ملک عطا کرتا ہے. تو میری سیکنڈ پریورٹی کہ ہم یوتھ کو اچھا فارم کریں, کیونکہ لائف میں بہت چیلنجز ہیں. سوشل میڈیا از افیکٹنگ دا لائف آف دا پیپل. اوکے, اور ان سارے سیناریوں میں ہم نے اپنی یوتھ کے ایمان کو, یوتھ کے ویژن کو, یوتھ کے فوکس کو کیسے انٹیکٹ رکھنا ہے. تھرڈ امپورٹنٹ پریورٹی میری فیملی فارمیشن. فیملی ہر معاشرے کی اکائی ہے. فیملیوں سے معاشرہ بنتا ہے, فیملی سے
अच्छी चर्च बनती है। तो अच्छी फैमिली हमारी अच्छी कलीसिया को की आबियारी का सबब बनती हैं। तो मेरी हमेशा यही ख्वाहिश रही है कि ख़ानदानों की तरबियत में इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया जाए, और हम पैरिश में मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम्स करते रहते हैं यूथ के लिए और ख़ानदानों के लिए, ईमानी फॉर्मेशन के लिए, ईमानी बलोगत के लिए, ताकि लोग ईमान में बढ़ें और अपनी ईमानी, रूहानी, इखलाकी तरबियत में भी बढ़ते जाएँ। तो ये 3 बहुत इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटीज़ मेरी हर पैरिश में रही हैं। फजी, एक वक़्त था कि फॉरेनर्स आते थे, बैरून मुल्क से काहिन आते थे, जैसे कि हमारे कैप्चर्स हैं, ये एक वक़्त था कि हमारे मुकामी काहिन नहीं होते थे। ये लोग बाहर से आते थे और यहाँ पे आके मसीह खुदावंद के नाम का प्रचार करते थे। अब वक़्त बहुत चेंज हो गया, अब हमारे मुकामी काहिन बहुत ज़्यादा, खुदावंद का शुक्र है कि वो आ गए हैं। फजी, अब आप उस वक़्त की खिदमत को और अब की खिदमत के मिजाज को कैसा देखते हैं? ओके, आज सबसे पहले हम अपने तमाम मिशनरीज़ का यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। मैं ज़ाती तौर पर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ उनकी सारी खिदमत के लिए जो उन्होंने हमारे मुल्क पाकिस्तान में और हमारी चर्च में की हैं। आई थिंक जब वो आए उन्होंने स्कूल्स बनाए, उन्होंने चर्चेस बनाए, उन्होंने इंस्टीट्यूट्स बनाए और बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा किया। हमारे मुल्क के बहुत सारे की लोग उनके जो हाई पोस्ट पर हैं वो हमारे मिशनरी अदारों से पढ़े हैं। तो उनका बहुत अहम रोल है एजुकेशन में, तरबियत में, और हम आज उनका शुक्रिया अदा करते हैं। ईमान की तरबियत में, हमारे एजुकेशन की तरबियत में उनका इम्पॉर्टेंट रोल है। उन्हें अपनी खिदमत सर अंजाम दी और वो अब तकरीबन हमारे मुल्क से खिदमत करके चले गए हैं, या कई खुद ही मसीह में सो चुके हैं और हमारी सरजमीन में बहुत सारे दफनाए भी गए। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन उन्होंने हमें एक विजन और मैंडेट अदा किया कि हम जो भी लोकल चर्च है, मुकामी कलीसिया, हम उनकी खिदमत को, उनके विजन को, उनके कैरिज्म को, उनके हार्ड वर्क को जो उन्होंने किया, हम उसको कैरी ऑन रख सके। अब ये दौर बहुत तरक्की याफ्ता दौर है। मिशनरीज़ का दौर और प्रेजेंट दौर में बहुत फ़र्क है। एक दौर था मिशनरी साइकिलों पर, घोड़ों पर, कैमल्स पर वो सफ़र करते और इवन बाय फुट वो कलाम की तशहीर के लिए, कलाम को फैलाने के लिए आगे बढ़ते रहे। लेकिन अब बहुत एक शिफ्ट है, पैराडाइम शिफ्ट एक हमारी दुनिया में, हमारे मुल्क में और मिशनरी एंडेवर्स में आ चुकी है। अब सोशल मीडिया का जो दौर है, अब कलाम आपके हाथों में होता है, आपके मोबाइल में होता है, और आप इस तरह जिद्दत के साथ, इसको कहते हैं न्यू इवेंजलाइजेशन, कि आज हमारी मुकामी कलीसिया को नए नए तरीके वो अडेप्ट करने हैं ताकि कलाम आगे बढ़ता रहे और मिशनरियों के ड्रीम्स, ख्वाब वो रुके नहीं बल्कि उनकी ताबीर होती रहे। एक हमें बहुत स्ट्रॉन्ग होना है, लोकल मुकामी भी काहिनों को, रिलीजियस जमायतों को बहुत स्ट्रॉन्ग होना है। इन मुल्क की तब्दीलियाँ जो आ रही हैं, दुनिया में जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, उनका सामना करने के लिए। अच्छा, ये बताइएगा, जैसे आपने बताया अपना वो सेंटर्स का तजुर्बा भी बताया, अब गुलबर्ग में भी आपने काम किया, लाहौर कैंट में भी किया और अभी आप गुलबर्ग में भी बतौर पैरिश प्रीस्ट काम कर रहे हैं। तो एज अ प्रीस्ट किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है आपको, और इसमें इन चैलेंजेस में आप समझते हैं कि जो आपके मुआविन ग्रुप्स होते हैं वो कितने मददगार साबित होते हैं? मैं जिक्र करना चाहता हूँ कि लास्ट 3 years से हमारी चर्च में, यूनिवर्सल चर्च में सिनोडैलिटी चर्च पर बहुत बात हो रही है, जिसका मतलब है टू वर्क टुगेदर, जर्नी टुगेदर। और मैं समझता हूँ कि मैंने हमेशा इस तरीक़ेकार को अपनाया है कि हमारे पैरिश में जो ग्रुप्स होते हैं वो एक काहिन के बाजू होते हैं। काहिन ग्रुप्स के बगैर, कैटेकिस्ट के बगैर वो तन्हा है और अधूरा है। तो ग्रुप्स एक पैरिश में स्ट्रेंथ होते हैं।
उनका कोलैबोरेशन, उनको साथ लेके चलना और उनको अपनी खिदमत में प्रायोरिटी देना वेरी इम्पॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगा, मेरा ज़ाती भी एक्सपीरियंस है और आई लुक फॉरवर्ड आल्सो कि ग्रुप्स के साथ पैरिशेस में काम करना चाहिए, उनको इम्पॉर्टेंस देनी चाहिए और उनके रोल को तस्लीम करना चाहिए। इससे पैरिश में और खूबसूरती बढ़ती है, पैरिश में साइनर्जी पैदा होती है, इत्तेहाद, यूनिटी पैदा होती है, कोलैबोरेशन पैदा होता है। तो ऐसे बतौर काहिन मैंने इसी पे बहुत काम किया और ये एक पैरिश की तरक्की बका का इम्पॉर्टेंट एक सोर्स है। फजी, आप जैसे काहिन कलीसिया की ईमानी आबियारी में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। इस तरह फजी आपने बताया कि ग्रुप्स और कैटेकिस्ट एक काहिन के बाजू होते हैं, तो फजी इन बाजुओं को और स्ट्रॉन्ग कैसे किया जा सकता है, अपने उनको मनातों को और अपने ग्रुप्स को कैसे और मज़ीद कैसे स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है? या इनके साथ मिलके काम करना चाहिए, इनको सुनना चाहिए, क्योंकि सीनियर चर्च हमेशा सुनने की बात करती है, लिसन टू वन अनदर। जितना हम अपने ग्रुप्स को सुनेंगे, एक काहिन के इल्म में इजाफा होता है। तो काहिन को सबसे पहले इतना आजिज़ हलीम होना चाहिए कि वो दूसरों के मशवरों को, उनकी ओपिनियंस को वो सुने और उस पर काम भी करें। आई थिंक ग्रुप्स को इकट्ठे रखने की सबसे बड़ी एक ज़रिया हो सकता है मिल के बैठना, सुनना और मिल के आप अपने पैरिश के लिए अच्छी राहों का तयन कर सकते हैं। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है डिसीजन मेकिंग और डिसीजन टेकिंग। बहुत दफ़ा हम डिसीजन टेकिंग के प्रोसेस से गुजर जाते हैं अलोन एज ए काइंड, लेकिन डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस जहाँ पर हमने इन्वॉल्व करना होता है, सुनना होता है, कोलैबोरेशन होनी चाहिए, वो हम भूल जाते हैं। तो हमें डिसीजन मेकिंग और डिसीजन टेकिंग को कोलैबोरेट करना है, ज्वाइन करना है, ताकि पैरिश की अच्छी तरबियत हो सके और पैरिश ग्रो कर सके। फजी, आपने जैसे आगाज़ में बताया कि आप जब बतौर तालिब इल्म थे तो आपने सिस्टर्स ऑफ चैरिटी के स्कूल में आपने तालीम हासिल की और आपके जो प्रीस्ट थे वो फॉरेनर्स थे। तो फजी, आप अपनी लाइफ में किस काहिन से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए? ये शहजाद बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देयर सो मैनी प्रीस्ट ओके जिन्होंने मेरी लाइफ पर इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया है। मैं समझता हूँ कि हर वो काहिन जिसमें खुदा का वजूद है, यीशु का वजूद है, हर वो काहिन जो ऑनेस्ट हैं, जो ज़िम्मेदार हैं, हर वो काहिन जो अपनी बुलाहट में वफादार हैं, हर वो काहिन जो अपनी खिदमत में वो ट्रांसपेरेंट है, मेरे लिए वो एक मॉडल हैं। आई डोंट वांट टू पिन पॉइंट नेम ऑफ एनी प्रीस्ट, लेकिन मैं इज्तमाही तौर पर हर वो काहिन जिसमें यीशु मसीह नज़र आता है वो मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है, क्योंकि प्रीस्ट शुड बी अ सेकंड क्राइस्ट। ओके, ये एक हमारी कलीसिया भी में सिखाती है कि उसके अंदर यीशु का वजूद होना चाहिए, यीशु की मौजूदगी मामूली होनी चाहिए। तो वो मुझे मुतासर करता है। मैंने सीखने के अमल को किसी एक दो शख्स तक महदूद नहीं किया, बल्कि हर शख्स जिसमें अच्छाई पाई जाती है, जिसमें गुडनेस पाई जाती है, वो मेरे लिए एक लाइमलाइट है, मेरे लिए एक रोल मॉडल है और मैं सीखता हूँ और ताकि अपनी खिदमत को और बेहतर और खूबसूरत और बामकसद बना सकूँ। जी, आप जैसे बल्कि सब लोग जानते हैं कि आप बड़े सॉफ्ट स्पोकन हैं और बड़े हमेशा स्माइलिंग फेस है आपका, हमेशा हंसते मुस्कुराते हर किसी से मिलते हैं। आपकी लाइफ की कोर वैल्यू क्या है? मेरी लाइफ की सबसे कोर वैल्यू जो मैं समझता हूँ और मेरे में है भी, और जिस पर मुझे गाहे बगाहे बहुत सारे कमेंट्स भी मिलते हैं, वो है सर हलीमी, ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी मेरे ईमान का, मेरी ज़िंदगी का, मेरी खानत का
एक बहुत सिग्नेचर वैल्यू है जिसको कहते हैं, ठीक है। अब जब से मेरी सिल्वर जुबली का आगाज़ हुआ है, बहुत सारे मैसेजेस आए मुझे, ओल्ड फ्रेंड्स ने मैसेजेस दिए, और तमाम मेरे फ्रेंड्स ने एक चीज़ का जिक्र किया कि फादर, आपकी ह्यूमिलिटी हमें बहुत मुतासर करती हैं, और इस वैल्यू को कैरी ऑन रखो, ये आपकी खिदमत का एक इम्पॉर्टेंट स्पिरिचुअल टूल है, और इसमें आगे बढ़ते रहो। और आई बिलीव इन दैट। और ये वैल्यू जो मैं समझता हूँ मुझे मेरे पेरेंट्स से मिली है। मेरे पापा, मेरी मामा, वो बहुत हम्बल, सिंपल मेरे वालिदैन हैं, और जिनके अंदर ये खुद के अंदर बहुत खूबसूरत ये वैल्यू पाई जाती है ह्यूमिलिटी की, और ये ट्रांसमिट उनकी ज़िंदगी से मुझे हुई, और मैंने फिर सीखा इसको मैंने और नर्चर किया, इसको मैंने और ऑर्गेनाइज किया अपनी लाइफ में। और अब मैं समझता हूँ कि आई थिंक दिस इज़ माई वन ऑफ द टॉप वैल्यूज़ ऑफ माई लाइफ एज ए प्रीस्ट, एज ए ह्यूमन बीइंग। फजी, आप जब प्रीस्ट बने तो जैसे आपने बताया कि आपने जब आप पढ़ रहे थे उधर फॉर्मेशन हाउस में थे, सेमिनरी में थे, तो उस वक्त आप अपने प्रोफेसर्स को देख के आप कहते थे कि मैं भी इन जैसा बनूं। फजी, कोई ऐसा गोल जो कि आप सोच के आप काहिन बने, और उसके बाद आप इन 25 सालों में आप समझते हैं कि आपने वो गोल अचीव किया, या आने वाले अगले 25 सालों का आपका क्या विजन होगा? कहानत को 25 साल हो चुके हैं, और जो सबसे बड़ा आई थिंक गोल मैंने अपनी ज़िंदगी में अचीव किया है वो वफ़ादारी का है। ऑनेस्टी एंड वफ़ादारी टू माई प्रीस्टी वोकेशन। मैं काहिन के लिए सबसे बड़ी ये बात होती है कि 25 साल इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग्स। 25 सालों में आप अपनी कहानी में वफ़ादार हो, ज़िम्मेदार हो, ऑनेस्ट हो। आई थिंक इससे बड़ा गोल एक काहिन के लिए वो नहीं हो सकता कि वो अपनी लाइफ में वो वफ़ादार हैं, फेथफुलनेस। ओके, और मैंने अपने इस 25 सालों में अपनी कहानत के साथ भरपूर कोशिश की है कि मैं फेथफुल रहूं और उसमें ज़िम्मेदार रहूं। और सेकंड थिंग कि एक काहिन की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी खुशखबरी का ज़रिया बननी है, कि गुड न्यूज़। क्योंकि यीशु मसीह जब अपना मैनिफेस्टो लेके आते हैं, मंशूर लेके आते हैं, तो ये कहते हैं कि मैं इसलिए मस्सा किया गया हूँ कि मस्कीनों को खुशखबरी दूँ, अंधों को रोशनी और बेनाई अता कर सकूँ, मस्कीनों को नई उम्मीद अता कर सकूँ, और खुदा उनके साल का इश्तहार कर सकूँ। गुड न्यूज़ ये काहिन की ज़िंदगी का एक इम्पॉर्टेंट ये एक रोल है। वी आर अनॉइंटेड, वी आर ब्लेस्ड, कॉन्सिक्रेटेड टू कैरी द गॉस्पेल गुड न्यूज़। और ये गुड न्यूज़ उम्मीद की है मैं इस साल 2026 में और आइंदा सालों में भी मेरी यही ख्वाहिश होगी कि लोगों में उम्मीद को कायम रखूं, उम्मीद को, क्योंकि दुनिया में बहुत नाउम्मीदी बढ़ती जा रही है, हालात बहुत मुश्किल होते जा रहे हैं, घरों में मुश्किलात हैं। इन सारी मुश्किलात को देखते हुए आई थिंक मुझे बतौर काहिन उम्मीद के बीच को हमेशा आगे बढ़ाना है। खुदा के कलाम लिखा है, उम्मीद में खुश, तकलीफ़ में साबर, और दुआ में मुश्किल रहो। ऐसे बतौर काहिन ये गॉस्पेल वैल्यू मेरे लिए एक रोशनी और एक उम्मीद फैलाने का जरिया है। फजी, आपने अपनी तरबियत में, अपने ईमान में हमेशा अपने पेरेंट्स का जिक्र किया है। आपके वाले साहब, आपके पापा अब इस वक्त खुदा उनके पास चले गए हुए हैं। फजी, आज कुछ कहना चाहते हैं उनके बारे में, कुछ ऐसे वर्ड्स जो शायद आप उनकी लाइफ में उनसे ना कह पाए हो या कहना चाहते हो मगर मौका ना मिला हो, तो आज कुछ कहना चाहते हैं फजी के लिए? ओके, मैं अपने पापा को यही कहना चाहता हूँ कि वी मिस हिम, ठीक है, एंड वी लव हिम अ लॉट, क्योंकि आज जो कुछ मैं हूँ उनकी वजह से, और उन्होंने जो वैल्यूज़ मेरी लाइफ में वो मुंतकिल की हैं, स्पेशली हार्ड वर्क। आई मीन बहुत मेहनती थे, और हार्ड वर्क उनकी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा था। और मेरे अंदर भी जो मेहनत करने का जज्बा है वो मेरे पापा की वजह से, एंड आई वांट टू टेल हिम दैट आई लव हिम एंड आई मिस हिम। थैंक यू वेरी मच फादर जी, आपके कीमती वक़्त का
اور آج ہم نے آپ کو یہاں پا کر اپنے درمیان بہت ہی زیادہ بلیسنگ محسوس کی اور آپ کی زندگی کے بارے میں جانا، اور ہمارے دیکھنے والوں نے بھی یقیناً آپ کی ان باتوں سے بہت سی برکتیں حاصل کی ہوں گی، اور ہم آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہیں، اور ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو آپ کی 25ویں کہانت کی سالگرہ پہ مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ خداوند اور پھلدار بنائے آپ کی اس کہانت کو اور آپ کے مشن کو، یوں ہی خدا برکتیں دیتا رہے۔ تھینک یو ویری مچ فار